بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. يا عليم علمني. کل الحمدللہ علم میراث کورس کا پہلا سبق آپ کو پڑھایا تھا. آج انشاءاللہ علم میراث کورس کا دوسرا سبق پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کرے اور صحیح دین کی فہم جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے، قرآن اور حدیث کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور اب تک جن حضرات نے دین کے حوالے سے خدمت کی ہے ہم تک پہنچانے میں، ہمارے اساتذہ کرام جن کا انتقال ہو چکا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب اور مولانا مشرف علی تھانوی صاحب اور مولانا اصغر علی ربانی صاحب، مولانا نصرت علی صاحب، مولانا رمضان کامرانی صاحب اور اس کے علاوہ دیگر جن اساتذہ کے انتقال ہو چکا ہے، ہمارے اعزاء قارب، ان کو اس کا ثواب پہنچائے اور اس کی برکت سے ہمارے لیے اس کورس کو آسان بنائے. اور ہمارے جو اساتذہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا یہ دوسرا سبق ہوگا انشاءاللہ. آغاز کر لیتے ہیں. آواز کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آواز صاف سنائی دے رہی ہے آپ سب کو، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ سکرین نظر آ رہی کہ نہیں. یہ دوسری بحث ورثہ کی پہچان، یہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ چلے الحمدللہ. کل کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ سب کو. کل الحمدللہ کل کے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علمی میراث کورس کا خاکہ جو ہے ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کیا ہے. پہلا حصہ جو ہے خلاصۃ المیراث یعنی علمی میراث کا خلاصہ، دوسرا حصہ جو ہے معرفت الورثہ یعنی ورثہ کی پہچان، اور تیسرا حصہ جو ہے توصیل الحقوق الی مستحقیہم یعنی ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ، اور چوتھا حصہ جو ہے متفرقات. ٹھیک ہے، تو خلاصۃ المیراث میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی. سب سے پہلے ترکہ سے متعلق 4 حقوق جو تھے، تجہیز و تکفین، پھر جو باقی مال بچ جائے اس سے قرض کی ادائیگی، اور پھر جو مال باقی بچ جائے اس میں سے 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا، اور پھر اسی طرح جو باقی مال بچ گیا اس کو تمام ورثہ میں تقسیم کرنا. یہ ترکہ سے متعلق 4 حقوق تھے. پھر ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب ہم نے پڑھی کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد عصبہ، اگر ذوی الفروض سے بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو عصبہ کو دیا جاتا ہے، اور اگر عصبہ نہ ہو پھر ذوی الفروض سے بچ جائے تو پھر ذوی الفروض نسبی پہ رد ہوتا ہے، اور اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو تب ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. ساتھ میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ اس میں مختلف 10 کتابوں میں 10 یعنی 10 افراد لکھے ہیں، 10 مختلف اقسام لکھے ہیں ترکہ تقسیم کرنے کی ترتیب. چونکہ نارملی یہی 4 صورتیں پیش آتی ہے اس لیے ان کو ذکر کر دیا، باقی کو چھوڑ دیا. وہ شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد موانع ارث بتائے کہ وہ اسباب، وہ صفات اگر کسی وارث میں پائے جائے ان میں سے کوئی ایک تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ غلامی، اگر غلام ہے کوئی وارث تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. اسی طرح وارث اپنی مورث کو قتل کر دے، قاتل وارث اپنے مقتول مورث کا جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا. اسی طرح
इख्तिलाफ दीन, काफिर मुसलमान का और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता। इख्तिलाफ दारैन ये सिर्फ काफिरों के लिए है कि पाकिस्तान का एक मुल्क का काफिर जो है दूसरे मुल्क के काफिर का वारिस नहीं बन सकता। अलबत्ता एक मुल्क में रहने वाला मुसलमान अपनी दूसरे अजीज रिश्तेदार जो दूसरे मुल्क में रहता है वो एक दूसरे के वारिस बन सकते हैं। ये कल के सबक का खुलासा आपको बताया। फिर उसके बाद दूसरी बहस हमने आगाज़ की मारिफतुल वरासा, वरासा की पहचान। दूसरी बहस जो है वरासा की पहचान, तो इसके बारे में मैंने बताया वरासा की 3 किस्में हैं, ज़वील फ़ुरूज़, आसाबात, ज़वील अरहम। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। दूसरी बहस वरासा की पहचान, वरासा की 3 किस्में हैं। ये सबको नज़र आ रहा है? ये ज़रा रिप्लाई करें जल्दी से। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी बहस वरासा की पहचान, वरासा की 3 किस्में हैं, ज़वील फ़ुरूज़, आसाबात, ज़वील अरहम। अब सबसे पहले हम ज़वील फ़ुरूज़ को लेके जाएंगे, आसाबात ज़वील अरहम को बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो ज़वील फ़ुरूज़ जो है कुल 12 है। ज़वील फ़ुरूज़ 12 है, 4 मर्द है उनमें से और 8 औरतें हैं। 4 मर्द कौन से हैं? अब, बाप, जद सहीह यानी दादा, अखी खैफी, माँ शरीक भाई या अखली ज़ौज यानी शोहर। ये 4 मर्द है और 8 औरतें हैं। ज़ौजा बीवी, बिन्त बेटी, बिनतुल इबन पोती, उख्त आइनी या उख्त लियाबिन व उम्मिन या हकीकी बहन। ठीक है, ये हकीकी बहन भी कह सकते हैं, बाकी ये दूसरे नाम भी है, ये भी याद कर लें। नंबर 5 उख्त अल्लाती या उख्त लियाबिन या बाप शरीक बहन। नंबर 6 उख्त खैफी, उख्त उख्त लिउम, माँ शरीक बहन। नंबर 7 यानी वालदा। नंबर 8 जद्दा सहीहा, ये सही लिखा है, गलत है, इसको आप इस तरह करने, जद्दा सहीहा। ठीक है, दादी और नानी को कहते हैं। जद सही में सिर्फ दादा दाखिल है और जद्दा सहीहा में दादी और नानी दोनों दाखिल है। फिर कल आपको ये भी बताया था, जौजैन यानी मियाँ बीवी को ज़वील फ़ुरूज़ सबबी कहते हैं। ठीक है, और बकिया 10 को ज़वील फ़ुरूज़ नसबी कहते हैं। तो गोया कि ज़वील फ़ुरूज़ की 2 किस्में हो गई, ज़वील फ़ुरूज़ नसबी और ज़वील फ़ुरूज़ सबबी। मियाँ बीवी जो है ये ज़वील फ़ुरूज़ सबबी है और बाकी जो 10 है वो ज़वील फ़ुरूज़ नसबी है। ये आपको सही तरीके से अजबर याद होना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये जो ज़वील फ़ुरूज़ हमने 12 पढ़े हैं, अब इनमें से हर एक की हालत हमने पढ़नी, हर एक का हिस्सा पढ़ना है। तो हर एक का हिस्सा पढ़ने से पहले हम ये कुरान मजीद में जो इनके हिस्से मुकर्रर है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ज़वील फ़ुरूज़ के बारे में मैंने आपको बताया, वो वरासा जिनके हिस्से कुरान मजीद में मुकर्रर है, जिनके हिस्से कुरान मजीद में लिखे हुए हैं, मुकर्रर है, उनको ज़वील फ़ुरूज़ कहा जाता है। अब कुरान मजीद में कितने हिस्से लिखे हुए हैं? कुरान मजीद में कितने हिस्से लिखे हुए हैं? कौन कौन से हिस्से लिखे हुए हैं? तो 6 हिस्से हैं। कुरान मजीद में कुल कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं जिनको लिखा गया है। इनको हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली किस्म जिसको अरबी में हम नौ अव्वल कहें, और दूसरी किस्म ये नौ सानी, यहाँ पे नौ अव्वल ही लिखा हुआ है, तो ये गलतियाँ जो है ये दुरुस्त करते जाएं साथ में प्रूफ रीडिंग वगैरह की। ये नौ सानी, इसको हम क्या कहेंगे? नौ सानी। कुरान मजीद में जो मज़कूर हिस्से हैं वो 6 हैं, उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 पहली किस्म, नंबर 2 दूसरी किस्म, या नौअ अव्वल नौअ सानी, दोनों आप नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, पहली किस्म में कौन कौन से हिस्से आते हैं? ये 3 हिस्से हैं। नंबर 1 निस्फ, नंबर 1 निस्फ यानी आधा, 1/2। तीनों तरह लिख सकते हैं, निस्फ भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम जब प्रैक्टिस करेंगे ये 1/2 करके लिखेंगे। नंबर 2 रुबो, उर्दू में हम बोलेंगे चौथाई, चौथाई हिस्सा, यानी एक चीज़ के 4 हिस्से कर दें, चौथा हिस्सा जो होगा वो चौथाई कहलाएगा, रुबो कहलाएगा, 1/4। निस्फ से मुराद ये कि एक चीज़ के 2 हिस्से कर दें, एक हिस्सा जो होगा वो आधा कहलाएगा, निस्फ कहलाएगा। सुमुन, 8वां हिस्सा, 1/8। इसका मतलब ये होता है कि एक चीज़ के 8 हिस्से कर दें, जो उसका 8वां हिस्सा होगा उसको सुमुन कहेंगे। ये तो पहली किस्म है, निस्फ, रुबो, सुमुन, ये पहली किस्म है। ठीक है, आगे दूसरी किस्म में सुलुस, 1/3, 1/3। 1/3 से मुराद एक चीज के 3 हिस्से कर दें, तीसरा हिस्सा जो होगा वो 1/3 या सुलुस कहलाएगा। सुलुसान, 2/3, मतलब एक चीज के 3 हिस्से कर दें, 2 हिस्से जो है उनके
दो सुलूसान कहलाएंगे, 2/3 कहलाएंगे, 2/3 से इसको जाहिर करेंगे। ठीक है। नंबर 6 सुदुस, छठा हिस्सा, 1/6, यानी एक चीज के 6 हिस्से कर दें, उनमें से जो छठा हिस्सा होगा वो सुदुस कहलाएगा। ठीक है। ये 6 हिस्से हमारे पास। अब इनमें से किस वारिस का कौन कौन सा हिस्सा मिलता है उसे, कौन कौन सा हिस्सा उसका बनता है, वो हम पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम चलते हैं। तो कुरान मजीद में मज़कूर जो हिस्से अच्छे हैं और उनको दो हिस्सों में तकसीम किया, पहली किस्म दूसरी किस्म। पहली किस्म में निस्फ, रुबु और सुमुन आता है, दूसरी किस्म में सुलुस, सुलुसान, सुदुस आता है। इस तरीके से आपने याद करना है। ठीक है। और समझ भी आना चाहिए कि निस्फ से मुराद क्या है, रुबु से मुराद क्या है, सुमुन से मुराद क्या है, सुलुस, सुलुसान, सुदुस से क्या मुराद है। ये बात हो गई। अब जो है ज़वील फुरूज हमने पढ़ी थी कि 12 है, उनमें से 4 मर्द है। तो अब हम सबसे पहले 4 मर्दों से आगाज करेंगे। 4 मर्दों में सबसे पहली किस्म जो है वो बाप है। बाप सबसे पहला जो है वो फर्द जो आता है वो बाप है। अब बाप का विरासत में हिस्सा क्या है। ठीक है। मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, बाप का विरासत में हिस्से से मुराद क्या, एक शख्स का इंतकाल हुआ, वो रसा में बाप मौजूद है, वो रसा में बाप मौजूद है, तो आप कैसे हिस्सा देंगे, कैसे तकसीम करेंगे। तो ये आपने याद करना है कि बाप की 3 हालतें हैं। बाप की क्या है, 3 हालतें हैं। मेरे साथ दो, पहले आप समझ लें इसको, फिर बाद में दोहराएंगे भी। बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1 सुदुस, सुदुस 1/6, यानी बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। ये छठे हिस्से को हम ताबीर करते हैं अरबी में वैसे फर्ज, फर्ज, फर्ज वैसे मैंने बताया था, सुदुस को ये हिस्से को बोलते हैं। ठीक है। फर्ज से भी ताबीर करते हैं, तो अरबी में हम फर्ज से ही हम इसको ताबीर करेंगे। तो बाप को क्या मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। एक हालत। दूसरी हालत इसकी होती है कि बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा, सुदुस भी मिलेगा, और बाप आसबा भी होगा, यानी एक ही वक्त में सुदुस भी मिलेगा और एक ही वक्त में आसबा भी होगा। ठीक है। अब ये परेशान ना हो कि एक ही वक्त में वो ज़वील फुरूज भी बन जाए यानी और आसबा भी बन जाए, ये मुमकिन है। इंशाल्लाह इसको हल करेंगे, आपको समझ आएगी बाद में। नंबर 3 बाप सिर्फ आसबा होगा। बाप क्या होगा, सिर्फ आसबा होगा। अपने आप अब आपने याद करना कि बाप की 3 हालतें हैं, सुदुस, नंबर 2 सुदुस और आसबा, नंबर 3 सिर्फ आसबा। सिर्फ सुदुस, सुदुस और आसबा, और सिर्फ आसबा। अब ये सिर्फ सुदुस जो है, ये सिर्फ सुदुस कब मिलेगा, यानी सिर्फ छठा हिस्सा कब मिलेगा, ये सामने लिखा है हमने। छठा हिस्सा, सिर्फ छठा हिस्सा कब मिलता है, तो इसकी 2 हालतें, अलिफ और बा। जब मैयत की मुजक्कर औलाद यानी बेटा या पोता वगैरह हो, मैयत की मुजक्कर औलाद, मुजक्कर औलाद यानी बेटा हो या पोता हो। ठीक है। या मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो, बेटा बेटी दोनों हो या पोता पोती दोनों हो, तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है। मैयत की मुजक्कर औलाद मौजूद हो यानी सिर्फ बेटा है या पोता है, तब बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। या मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो यानी बेटा और बेटी दोनों हो, तो ऐसी सूरत में छठा हिस्सा मिलता है। ये जरा फर्ज करें ये बाप मरा नहीं है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बाप मरहूम जो है, मरहूम का बाप मौजूद है और मरहूम का बेटा या बेटी मौजूद है। मरहूम का इंतकाल हो चुका है, उसका बाप मौजूद है एक तरफ, दूसरी तरफ उसका बेटा है, तो अब बाप को कौन सा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। या इसी तरह मरहूम का इंतकाल हो गया, उसका बाप मौजूद है और बेटा बेटी दोनों मौजूद है, तब भी मरहूम के बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। ये सुदुस और आसबा कब बनेगा बाप, जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो यानी बेटी या पोती हो, बेटी या पोती हो, तो ये मुअन्नस औलाद है। ये ऐसी सूरत में छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी बनता है। सिर्फ मुजक्कर औलाद हो तो छठा हिस्सा मिलता है, बता दिया मैंने। दोनों औलादें हो मुजक्कर मुअन्नस, तब भी छठा हिस्सा मिलता है। यहाँ पे तीसरी सूरत बताई कि अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद है यानी बेटा बेटी या पोती है, तो ऐसी सूरत में सुदुस भी मिलेगा और छठा हिस्सा आसबा भी होगा। नंबर 3 आसबा होगा। बाप क्या होगा, आसबा बनेगा कब, जब मैयत की कोई औलाद ना हो, यानी एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है और औलाद नहीं है, तो ऐसी सूरत में यह आसबा बनेगा। अच्छा, ये तो 3 अहवाल है। अब ये जब भी आपने विरासत का मसला हल करना है,
तो यही 3 हालतें होंगी, इससे आगे कोई हालत नहीं है। जब आपके सामने विरासत का मसला आ गया, उसमें आपने देखा कि बाप मौजूद है, आंखें बंद करनी है, बाकी अफराद को नहीं देखना, आपने देख लिया बाप मौजूद है, आप ये 3 हालतें दोहरा दे, या तो इसको छठा हिस्सा मिलेगा, या छठा और आसबा होगा, या सिर्फ आसबा होगा। तो जो भी हिस्सा मिल रहा होगा वो उसके नाम के साथ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक तहकीक याद रखें, एक बड़ी अहम बात, नुक्ते की बात याद करें। यहाँ पे वलद या औलाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वलद या औलाद, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। वलद वाहिद है, औलाद जमा है। इसमें बेटा और बेटी दोनों शामिल है, बेटे और बेटी दोनों को शामिल होता है, ठीक है। इसी तरह हर वो बिल वास्ता मुज़क्कर या मुअन्नस औलाद जिनका रिश्ता मैयत के साथ मर्द के जरिए से हो, जिनका रिश्ता मैयत के साथ मर्द के जरिए से हो, उस उनको भी शामिल होगा। मसलन पोता पोती, अब ये पोता और पोती जो है, ये इसका मैयत के साथ रिश्ता जो है बेटे के जरिए से है, दरमियान में वास्ता मर्द आ गया, तो इसको भी ये वलद या औलाद शामिल है। अलबत्ता जिनका रिश्ता मैयत के साथ किसी औरत के जरिए से हो, नवासा नवासी, वो इस लफ्ज में शामिल नहीं है। तो लफ्ज वलद या औलाद बेटे बेटी दोनों को शामिल है। इसी तरह पोती और पोते को भी शामिल है, पढ़ पोता पढ़ पोती को भी शामिल है, लेकिन नवासा नवासी को ये शामिल नहीं है। नवासा नवासी जो है ये वलद या औलाद में शामिल नहीं है। ये अहम बात याद रखें, ये इंशाल्लाह बाद में काम आएगी आपको। अब आगे हम मिसालें जरा देखते हैं। ये समझ आ रही सबको? जरा मुझे बता दें, नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रही कि नहीं? जी समझ आ रही है जी। अब दोबारा, अब मिसालें अभी जो हमने पढ़ा है, अभी इसकी मिसालें जो है हम हल करेंगे। तो तवज्जो से, आप तब तवज्जो से एक ये अभी दोबारा वही सबक दोहराया जा रहा है, दोबारा दोहराया जा रहा है, मिसालों में वही सबक दोबारा दोहराया जा रहा है। अच्छा ये देखें, अब विरासत के मसले कैसे हल करने हैं, ये इसका तरीका भी आप सीखते जाएंगे। ये हम मिसाल नंबर 1 में है, हम किस में है? मिसाल नंबर 1 में, ठीक है। ये मैयत को हमने लिटा दिया, मैयत को हमने क्या कर दिया? लिटा दिया। ये आपने लिख दिया इस तरह, बेचारा मरहूम हमारे सामने लेटा हुआ है, एक दिन हमने भी इसी तरह मैयत बन के मर जाना है। अल्लाह ताला हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले मरने की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो अब ये मरहूम का इंतकाल हो गया, एक शख्स का इंतकाल हो गया। अब वो जिस शख्स का इंतकाल हो गया उसका बाप मौजूद है, वरासा में एक बाप मौजूद है, बेटा मौजूद है, ठीक है। अब बेटा अभी तक हमने पढ़ा नहीं, बेटी की विरासत, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस नहीं करना, हमने सिर्फ बाप की विरासत पढ़ी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका बाप मौजूद है और बेटा मौजूद है। अब हमने विरासत तकसीम करनी है। तो अभी हमने बाप के 3 अहवाल पढ़े, सुदुस, सुदुस प्लस आसबा और सिर्फ आसबा। अब हमने वो देखना है सुदुस कब मिलता है? जब मरहूम का बेटा मौजूद हो, मुज़क्कर औलाद मौजूद है। यहाँ पे मरहूम की मुज़क्कर औलाद मौजूद है, बेटा मौजूद है, तो बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा, ठीक है। इसी तरह मिसाल नंबर 2 में आ जाए, मिसाल नंबर 2 में आ जाए, इसमें मरहूम का बाप मौजूद है, मरने वाले का बाप मौजूद है, मरहूम का बेटा भी मौजूद है, मरहूम की बेटी भी मौजूद है। बेटा और बेटी इसकी विरासत अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है, इनकी विरासत बाद में जब हम पढ़ेंगे तब उस वक्त देखेंगे, अभी नहीं देखनी। अब बाप के हमने 3 अहवाल पढ़े थे, सुदुस, सुदुस प्लस आसबा, सिर्फ आसबा। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे मरहूम की मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद मौजूद है, तो ऐसी सूरत में हमने पढ़ा छठा हिस्सा मिलता है, तो बाप को हमने छठा हिस्सा दे दिया, बाप को हमने छठा हिस्सा दे दिया, सुदुस दे दिया। मिसाल नंबर 3, अब यहाँ पे मरने वाले का बाप मौजूद है और मरने वाले की बेटी यानी मुअन्नस औलाद मौजूद है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर मरहूम का बाप मौजूद हो और मरहूम की बेटी मौजूद हो, मुअन्नस औलाद मौजूद हो, तो मरहूम को छठा हिस्सा भी मिलता है और प्लस आसबा भी होता है, छठा हिस्सा भी मिलता है प्लस आसबा भी होता है, ठीक है। नंबर 4, मिसाल नंबर 4 देखें, मिसाल नंबर 4, मरहूम का बाप मौजूद है, मरहूम का क्या है? बाप मौजूद है और जौज यानी शोहर मौजूद है। हमने पढ़ा कि अगर
मरहूम का बाप हो और मरहूम की औलाद ना हो, तो ऐसी सूरत में बाप आसबा बनता है। ऐसी सूरत में क्या होता है? आसबा बनता है। अब ये कि सुदुस कैसे बनता है, आसबा कैसे बनता है, क्या तरतीब है, कितना मिलता है, अभी थोड़ा इंतज़ार करें, अभी हमने वो पढ़ना है। अब ये छठा हिस्सा बाप को कैसे देना है, आसबा कैसे देना है, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि बाप के हिस्से कितने बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं। अब मरहूम जो है, मरहूम मर्द भी हो सकता है, खातून भी हो सकती है। खातून भी हो सकती है, और मरहूम भी हो सकता है, मरहूमा भी हो सकती है। यानी मरहूमा का बाप है और बेटा है, मरहूमा का बाप है, बेटा और बेटी है, मरहूमा का बाप है और बेटी है, मरहूमा का बाप है और शोहर। यहाँ पे ये मिसाल नंबर 4 में ये मरहूम नहीं है, यहाँ पे मरहूमा है। ये थोड़ा सोच समझ के और तवज्जो से वो करें, कहीं ऐसा ना हो कि मरहूमा को मरहूम हम बना लें। तो ये मिसाल नंबर 4 में मरहूमा है, और बकिया मिसालों में मरहूम मरहूमा दोनों चल सकते हैं। मिसाल नंबर 4 में सिर्फ मरहूमा चल सकती है, क्योंकि आगे वरसा में शोहर मौजूद है। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बाप के अहवाल हमने पढ़ लिए, मिसालें भी पढ़ ली। अब इसी को हमने अरबी में ताबीर करना है। अभी तक अगर किसी को समझ नहीं आया, अब समझ आ जाना चाहिए, तीसरी मरतबा बात आ रही है। ये सवालात जो है नोट करते जाएं, आखिर में जवाबात दिए जाएंगे, अभी सवालात के जवाबात नहीं होंगे, आखिर में। ठीक है। अब अरबी में कैसे याद करना है? अम्मल अबू फलहु अहवालुन सलासुन। बहरहाल बाप जो है उसके 3 अहवाल है। नंबर 1, अस्सुदुसु इंदल इब्नी औ इब्निल इबिली व इन सफल सवाउन काना माहु बिन्तुन अम ला। बाप को छठा हिस्सा मिलेगा कब? बेटे की मौजूदगी में, इब्नुल इबन पोते की मौजूदगी में, इब्नुल इबन पोते को कहते हैं, व इन सफल, और इसी तरह नीचे तक चलते जाए, पोता, पड़ पोता, शकड़ पोता, लकड़ पोता, ये नीचे चलते जाए, व इन सफल में ये सब दाखिल है। सवा उन, ये दूसरी सूरत अब यहाँ से बयान कर रहे हैं, सवा उनका न माहू बिन्तुन अम ला। अब बेटे के साथ चाहे बेटी मौजूद हो या ना हो। पहली सूरत है कि सिर्फ बेटा हो, दूसरी सूरत है कि बेटे के साथ बेटी मौजूद, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो। ये पहली सूरत हो गई। दूसरी सूरत, अस्सुदुसु वत्तासीबु इंदल बिन्ति औ बिन्तिल इब्नी व इन सफलत। सुदुस छठा हिस्सा, व तासीब और आसबा कब होगा? इंदल बिन्ति बेटी की मौजूदगी में, यानी मुअन्नस औलाद की मौजूदगी में, औ बिन्तिल इब्नी पोती की मौजूदगी में। बिन्तुल इबन पोती को कहते हैं, इब्नुल इबन पोते को कहते हैं, वह इंसा फलत, इसी तरह नीचे चलते जाओ, पोती की बजाय पड़ पोती, सगड़ पोती, लगड़ पोती, चलते जाओ नीचे। ठीक है। नंबर 3, अत्तासीबुल महज़ इंदा अदमिल वलदी व वलदिल इब्नी व इंसफल। अत्तासीबुल महज़, महज़ का माना होता है सिर्फ, महज़ का माना क्या होता है? सिर्फ। अत्तासीब आसबा, यानी सिर्फ आसबा होगा कब? इंदा अदमिल वलदी, वलद के ना होने की सूरत में। वलद में बेटा बेटी दोनों दाखिल, औलाद के ना होने की सूरत में। वो वलदिल इब्नी, पोता पोता पोती के ना होने की सूरत में। वह इन सफल, इसी तरह नीचे जाती जाए, पढ़ पोता पढ़ पोती कोई भी ना हो, तो ऐसी सूरत में आसबा होगा। ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बाप के अहवाल हमने मुकम्मल पढ़ लिए, सीख लिए, समझ लिए। अब ये हमें याद होने चाहिए, इनको आपने अजबर याद करना है। ठीक है। और मिसालों से भी समझा दिया आपने, सिर्फ अहवाल याद करने। बाप को छठा हिस्सा मिलता है, कब मिलता है? जब मुज़क्कर औलाद हो मैयत की, या मुअन्नस औलाद, मुज़क्कर औलाद हो, सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो, या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो। छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी बनता है जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो। बाप आसबा होता है जब मैयत की औलाद ना हो। इतना आपने याद करना है बस, और इसको समझ लेना है आपको। अरबी में याद करेंगे, ये सामने आपकी इबारत है। उर्दू में याद करना चाहते हैं, वो आपको मैंने बता दी। अब हम जाते हैं दादा की तरफ। बाप के अहवाल हमने पढ़ लिए, दूसरा जो था वो दादा है। दादा का विरासत में हिस्सा कितना बनता है? यानी शख्स का इंतकाल हो चुका है या खातून का इंतकाल हो चुका है, वो रसा में, जैसे हमने पहले पढ़ा, बाप मौजूद है, अब दादा आ जाएगा। अब क्या आएगा? दादा आ जाएगा। अब क्या है?
दादा आ जाएगा। अब दादा का विरासत में कितना हिस्सा बनता है? अच्छा, एक बात याद करें कि ये बाप के जो हमने हिस्से पढ़े हैं, बाप और दादा की विरासत में हिस्से तकरीबन एक जैसे हैं, सिर्फ एक हिस्से का फर्क है, बाकी तकरीबन एक जैसे हैं। बाप के अहवाल आपने याद कर लिए, बाप की जगह सिर्फ दादा का नाम लिख लें तो वही हिस्से मिलते जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमने समझना है, कोई मुश्किल नहीं है। गोया कि बाप की विरासत के हिस्सों की दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अब वो जो एक हिस्सा फर्क है वो आपने समझना है। अच्छा, ये दादा के बारे में जब आप सिराजी किताब उठा के देखेंगे, उसमें जो एक बात आती है, वहां पे जद्द सही लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जद्द सही। जद्द सही से मुराद दादा है। ठीक है, जद्द सही यानी दादा को किन सूरतों में विरासत मिलती है? तो जद की दो किस्में हैं। जद की कितनी किस्में हैं? दो, जद्द सहीह और जद्द फासिद। जद्द सही और जद्द फासिद। जद्द सही से क्या मुराद? जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना हो, जैसे अबुल अब दादा। दादा और मैयत के दरमियान वास्ता कौन है? बाप है, बाप मुजक्कर है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मरहूम है, देखिए मरहूम है एक शब्द। अब ये अबुल अब दादा है, ये मरहूम अबुल अब दादा है। ठीक है, ये दरमियान में वास्ता किसका? बाप है, बाप है। तो जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए उसे जद्द सही कहते हैं। जैसे अबुल अब ये दादा है। जद्द फासिद जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता आ जाए, जैसे अबुल नाना। नाना जो है जद्द फासिद है, नाना इस। ठीक है, इसके दरमियान में माँ का वास्ता आता है। तो जद फासी यानी नाना जो है ये ज़वील फुरूज में से नहीं है, ये ज़वील अरहाम में से है। बाद में हम पढ़ेंगे नाना को विरासत में हिस्सा मिलेगा, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़वील फुरूज में से कौन है? जद सहीह यानी दादा है। जी, अब जद सही के विरासत हम पढ़ेंगे कि कैसे विरासत में हिस्सा मिलता है। तो दादा के कुल 4 अहवाल हैं। दादा के कुल कितने अहवाल हैं? 4 अहवाल है। बाप के हमने 3 पढ़े, इसके 4 अहवाल हैं। नंबर 1 महजूब, ये नया लफ्ज आपके सामने आ गया। महजूब यानी महरूम, विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, महरूम रहेगा। कब दादा महरूम रहेगा? यानी बाप अगर मौजूद हो तो दादा को कुछ नहीं मिलता। एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, अब उसका बाप भी मौजूद है वो रसा में, दादा भी मौजूद है, तो आंखें बंद करके आप कहेंगे कि भाई दादा को हिस्सा नहीं मिलेगा, बाप मौजूद है, बाप को हिस्सा मिलेगा। क्योंकि दादा और बाप इन दोनों में करीबी कौन है? मैयत का बाप करीबी है, तो करीब के होते हुए दूर वाले को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। तो बाप की मौजूदगी में दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, ये तो कंफर्म हो गया। अब आगे जो है, बाप अगर मौजूद ना हो, बाप अगर मौजूद ना हो तो फिर दरअसल बाप वाली 3 हालतें ही दादा की होंगी। यानी जो हमने बाप की 3 हालतें पढ़ी है वही दादा की हो जाएंगी। दादा को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। जिस तरह बाप को छठा हिस्सा मिलता था, इस तरह दादा को भी छठा हिस्सा मिलेगा। कब? जब मैयत की मुजक्कर औलाद यानी बेटा या पोता वगैरह हो, या मैयत की मुजक्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो, यानी बेटा और बेटी दोनों हो। ठीक है, छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2 सुदुस, छठा हिस्सा मिलेगा और आसबा भी बनेगा जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, यानी बेटी पोती वगैरह हो। नंबर 3 आसबा होगा जब मैयत की कोई औलाद ना हो। यही 3 अहवाल हमने बाप की भी पढ़े हैं कि नहीं? यही 3 अहवाल हमने बाप की भी पढ़े हैं। तो दादा के 4 अहवाल हो गए। पहली हालत ये कि दादा को बाप की मौजूदगी में विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। अगर बाप मौजूद ना हो तो फिर 3 हालतें होती है। छठा हिस्सा मिलता है मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो सिर्फ, या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलादें हो। सुदुस और आसबा बनता है जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, और आसबा होता है जब मैयत की कोई औलाद ना हो। अब जरा मिसालें भी हम समझ लें। जी, मिसाल नंबर 1 की तरफ आ जाए। मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हो चुका है, उसका दादा मौजूद है, उसका दादा मौजूद है और बाप मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा कि बाप की मौजूदगी में दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, इसको हम लिखेंगे महजूब या महरूम। इसी तरह मीम भी लिख सकते हैं, मीम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
महजूब भी लिख सकते हैं, महरूम भी लिख सकते हैं और मीम भी लिख सकते हैं। अच्छा, बाप के हमने 3 अहवाल पढ़े। अब मैयत की देखा औलाद नहीं है तो हमने पढ़ा था अगर औलाद ना हो बाप आसबा होता है तो हमने आसबा लिख दिया। आसबा भी लिख सकते हैं और आयन भी लिख सकते हैं, आयन भी लिख सकते हैं और आसबा भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिसाल नंबर 2 की तरफ आ जाए। मैयत एक शख्स का इंतकाल हो गया, दादा मौजूद है और बेटा मौजूद है, बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है, ये स्लेश का मतलब होता है या पोता मौजूद है। ठीक है, यानी मुज़क्कर औलाद मौजूद है। तो हमने पढ़ा कि मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो तो छठा हिस्सा मिलता है, मैयत की मुज़क्कर औलाद मौजूद हो तो छठा हिस्सा मिलता है। नंबर 3, मिसाल नंबर 3 की तरफ आ जाए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका दादा मौजूद है, बेटा मौजूद है और बेटी मौजूद है। हमने पढ़ा था कि अगर मैयत की मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद मौजूद हों तो ऐसी सूरत में दादा को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस दे दिया हमने। मिसाल नंबर 4 की तरफ आ जाए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका दादा मौजूद है, बेटी मौजूद है या पोती मौजूद है, बेटी मौजूद है या पोती मौजूद, यानी मुअन्नस औलाद मौजूद है। हमने पढ़ा था कि अगर मैयत की मुअन्नस औलाद मौजूद हो तो बाप हो या दादा हो दोनों को सुदुस मिलता है और साथ में आसबा भी बनते हैं। मिसाल नंबर 5 की तरफ आ जाए। मिसाल नंबर 5, एक शख्स का, एक खातून का इंतकाल हुआ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, खातून का इंतकाल हुआ, दादा मौजूद है और उसका शोहर मौजूद है, खातून का शोहर मौजूद है। तो ऐसी सूरत में दादा को आसबा मिलेगा, यानी मैयत की औलाद मौजूद नहीं है तो दादा को क्या मिलेगा, आसबा बन जाएगा। ठीक है, शोहर के हमने अहवाल पढ़े नहीं इसलिए अभी हमने वो डिस्कस नहीं किए। तो ये दादा के अहवाल ये भी आपको समझा दिए, सिखा दिए, ये उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गए होंगे। तो आपने इनको याद करना है, बाप और दादा के अहवाल मिलते जुलते हैं, आपने इनको याद करना है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें, ये एक तारीफ अरबी में बयान की है, वल जद्दु सहीह जद्द सहीह, वल जद्दु सहीह वल जद्दु सहीह जद्द सहीह वहुवा अल्लज़ी ला तदखुलु फी निस्बतिही इलल मय्यित उम्मुन, कि जिसकी निस्बत मैयत की तरफ करते हुए, जिसकी निस्बत मैयत की तरफ करते हुए दरमियान में ना आए, का वास्ता ना आए। तो ये जद्द सही किसकी तरफ है, किसकी तरह है, वहुवा कल अबी, ये बाप की तरह है, इल्ला फी अर्बाई मसाइला, सिवाय 4 मसाइल की। बाप और दादा में 4 मसाइल में फ़र्क है, बाप और दादा में कितने मसाइल में फ़र्क है, बाकी 4 हालतें एक जैसे हैं लेकिन 4 मसाइल में फ़र्क है। इन 4 मसाइल को अभी हमने नहीं पढ़ना, इन 4 मसाइल को पढ़ना नहीं है अभी, आपने सिर्फ याद रखना कि बाप और दादा के अहवाल तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं लेकिन 4 मसाइल में फ़र्क है। अब वो 4 मसाइल क्या है, इंशाल्लाह जब ज़वील फ़ुरूज़ को मुकम्मल करेंगे मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा और फिर आखिर में एक मरतबा दोबारा आ जाएंगे यहाँ पे, इन 4 मसाइल की तरफ दोबारा इंशाल्लाह आ जाएंगे। अभी जितना आपको पढ़ाया है, जितना आपसे हजम हो सकता है वो आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, उसको अपनी याद करना, अज़बर याद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। माँ शरीक भाई बहनों का विरासत में हिस्सा, माँ शरीक भाई बहनों का विरासत में हिस्सा, यहाँ पे माँ शरीक भाई जो है वो तो ज़वील फ़ुरूज़ में से है, मर्दों में से है, और बहनें जो है माँ शरीक बहनें, क्योंकि भाई बहनों का विरासत में एक जैसा हिस्सा है, माँ शरीक भाई बहनों का एक ही किस्म का है, तो इसलिए दोनों को एक साथ वो कर दिया गया, शामिल किया गया। इनको औलादुल उम भी कहा जाता है, औलादुल उम। औलाद का मैंने बताया था कि बेटा बेटी दोनों दाखिल होते हैं। माँ की औलाद, औलादुल उम का माना क्या होता है, माँ की औलाद। वहाँ पे हमने अखे खैफी, अखे खैफी वो भी नाम लिया था, माँ शरीक भाई, उख्त खैफी माँ शरीक बहन। अब इनको विरासत में कैसे हिस्सा मिलता है, यानी जिनकी माँ जो है मुश्तरक हो, बाप मुख्तलिफ हो। देखिए अल्लाहु अकबर कबीरा। अख खैफी माँ शरीक भाई हो गया, उख्त खैफी माँ शरीक बहन, औलादुल उम ये अरबी में नाम हो गया। ठीक है, इन दोनों के लिए औलादुल उम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इनकी भी 3 हालतें हैं, औलादुल उम की भी क्या है, 3 हालतें हैं।
नंबर 1 सुदुस, इनको क्या मिलता है? सुदुस। बाप को भी सुदुस मिलता था, दादा को भी, इनको भी सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है। कब मिलता है? अगर माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ एक हो, माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ एक हो। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका एक माँ शरीक भाई है, या एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी सिर्फ एक माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में इनको छठा हिस्सा मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ शरीक भाई या बहन एक भाई हो और एक बहन हो, नहीं। मसलन एक शख्स का इंतकाल हो गया, सिर्फ एक भाई है, माँ शरीक भाई है, या सिर्फ एक माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में इसको छठा हिस्सा मिलेगा, चाहे वो भाई हो या बहन हो, छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। नंबर 2 सुलुस मिल जाएगा। इनको क्या मिलेगा? ये सुलुस पहले हमने नहीं पढ़ा, एक तिहाई, सुलुस से मुराद एक तिहाई, यानी एक चीज के 3 हिस्से कर दिए, रोटी के 3 हिस्से कर दिए, केक के 3 हिस्से कर दिए, उनमें से एक हिस्सा जो होगा वो तीसरा हिस्सा कहलाता है, सुलुस कहलाता है। ठीक है। तो ये जो है सुलुस मिलेगा, कब मिलेगा? जब माँ शरीक भाई बहन एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो तो इनको एक तिहाई मिलता है, सुलुस मिलता है। मसलन 2 भाई है, 2 माँ शरीक भाई है, या 2 माँ शरीक बहनें हैं, या एक माँ शरीक भाई है और एक माँ शरीक बहन है, इन तीनों सूरतों में इनको सुलुस मिलेगा, एक तिहाई मिलेगा। नंबर 3 महजूब, ये महरूम होंगे। ये क्या होंगे? महरूम होंगे, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा इसको आपने समझना है। मैयत की औलाद हो, मैयत की औलाद हो तब इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। औलाद के बारे में मैंने आपको बताया था, बेटा बेटी ये शामिल है, पोता पोती शामिल है, औलाद में नवासा नवासी शामिल नहीं है। ठीक है। मैयत की औलाद हो, मसलन बेटा बेटी आ जाए तो आंखें बंद करके कहेंगे कि भाई इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। पोता पोती आ जाए तब भी आंखें बंद करके कहेंगे औलादुल उम को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये एक सूरत हो गई। मैयत की औलाद हो तब भी ये महरूम होते हैं। नंबर 2 मैयत का बाप मौजूद हो, मैयत का बाप मौजूद हो तब भी इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। इसी तरह दादा मौजूद हो तब भी इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। अगर माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ एक हो तो इनको छठा हिस्सा मिलता है। अगर माँ शरीक भाई बहन एक से ज्यादा हो, मसलन 2 माँ शरीक भाई है या 2 माँ शरीक बहनें हैं, या एक माँ शरीक भाई है और एक माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में इनको सुलुस मिलेगा। तो इस तीसरी हालत की इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, मैयत की औलाद हो या बाप हो या दादा वगैरह में से कोई हो, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। ये इनकी 3 हालतें हो गई। अब यहाँ पे नोट के तहत एक अहम बात जो है इसको आप याद करें, अगर औलादुल उम जो है एक से ज्यादा हो तो सुलुस सब में बराबर तकसीम होगा। नॉर्मली विरासत के उसूलों में आपने पढ़ा है, विरासत का उसूल पढ़ा है कि मुज़क्कर को मुअन्नस के मुकाबले में, भाई को बहन के मुकाबले में डबल हिस्सा मिलता है। भाई को 2 हिस्से मिलते हैं, बहन को 1 हिस्सा मिलता है। बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, बेटी को 2 हिस्से मिलते हैं, बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। लेकिन माँ शरीक भाई बहन जो है इनमें ये उसूल अप्लाई नहीं होगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ये उसूल का नाम है, ये उसूल अप्लाई नहीं होगा। इनको यहाँ पे जो है माँ शरीक भाई बहन को जो सुलुस मिलता है, सुलुस दोनों में बराबर तकसीम होगा। यानी एक माँ शरीक भाई है, एक माँ शरीक बहन है, इन दोनों को सुलुस मिलता है, सुलुस को दोनों में बराबर तकसीम करेंगे। यानी सुलुस का आधा एक को मिलेगा, सुलुस का आधा दूसरे को मिलेगा। बाकी आम जगह उसूल होता है भाई बहन आ जाए तो 2 हिस्से जो है भाई को दिए जाते हैं, 1 हिस्सा बहन को दिया जाता है। तो ये नोट के तहत अहम बात आपको बताई है, इसको आपने याद रखना है, समझना है। ठीक है। मिसालों की तरफ जाएंगे। मिसाल नंबर 1 की तरफ देखें। एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका एक अख खैफी है, एक माँ शरीक भाई है। ठीक है। तो अब इसको छठा हिस्सा मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। इसी तरह मिसाल नंबर 2 की तरफ देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक उख्त खैफी है, माँ शरीक बहन है, तो इसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है।
नंबर 3, मिसाल नंबर 3 की तरफ आए। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके एक अखी खैफी है। अखी खैफी से मुराद माँ शरीक भाई, उख्त खैफी से मुराद माँ शरीक बहन, उख्त खैफी से मुराद माँ शरीक बहन। तो ऐसी सूरत में मैंने आपको बताया था कि अगर माँ शरीक भाई बहन एक से ज़्यादा हों तो उनको सुलुस मिलता है। अब यहाँ पे वो 3 मुख्तलिफ सूरतें बता दी, चाहे 2 माँ शरीक भाई हो या 2 माँ शरीक बहनें हो या 1 माँ शरीक भाई हो 1 माँ शरीक बहन हो। तो यहाँ पे तीसरी सूरत में 1 माँ शरीक भाई है और 1 माँ शरीक बहन है, तो इनको सुलुस मिल जाएगा। और ये सुलुस जो है दोनों में बराबर तकसीम होगा, दोनों में क्या होगा, बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सुलुस के 2 हिस्से भाई को दे दें और एक हिस्सा जो है बहन को दे दें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके 2 माँ शरीक भाई है, 2 माँ शरीक भाई है, तब भी इनको सुलुस मिल जाएगा। ठीक है। और एक मिसाल यहाँ पे नहीं दी गई, वो आप समझ लें कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो जाए, उसकी 2 माँ शरीक बहनें हैं, तब भी उनको सुलुस मिलेगा। नंबर 5 की तरफ आ जाए। एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका 1 माँ शरीक भाई है, 1 माँ शरीक भाई है या 1 माँ शरीक बहन है या दोनों है, 1 माँ शरीक भाई और माँ शरीक बहन दोनों है, या 2 माँ शरीक भाई है या 2 माँ शरीक बहनें, जो भी है, तादाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ क्या आ जाए, एबन आ जाए या बेटी आ जाए या बाप आ जाए या दादा आ जाए, इनमें से कोई एक आ जाए, सब आ जाए, तो ये महरूम होंगे। ये माँ शरीक भाई बहन क्या होंगे, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। मैयत की औलाद आ जाए, बाप आ जाए, दादा आ जाए। मिसाल नंबर 6 की तरफ आ जाए। 1 माँ शरीक भाई है या 1 माँ शरीक बहन है या दोनों है या 2 माँ शरीक भाई है या 2 से ज्यादा है, 3 4, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हो सकता है। साथ में एक पोता आ जाए या पोती आ जाए, चूंकि ये भी मैयत की औलाद में से है, तो इसलिए इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये महरूम हो जाएंगे। ठीक है। अलबत्ता पोता पोती की जगह नवासा नवासी अगर आ जाए, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे, नवासा नवासी आ जाए, तो नवासा नवासी चूंकि मैयत की औलाद में से नहीं है, इसलिए उस सूरत में फिर इनको विरासत में हिस्सा मिल जाएगा, विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह औलादुल उम को विरासत में हिस्सा कैसे मिलता है ये भी आपको बता दिया। अभी तक अगर समझ नहीं आई, अब तवज्जो रखें। अब यहाँ पे अरबी में इसको कैसे याद करना है। व अम्मा लिऔलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन। औलादुल उम के लिए बहरहाल 3 हालतें हैं। औलादुल उम के लिए कितनी हालतें हैं, 3 हालतें हैं। नंबर 1 अस्सुदुसु लिल वाहिद, छठा हिस्सा मिलेगा एक के लिए। अब वो एक जो है, एक माँ शरीक भाई भी हो सकता है, एक माँ शरीक बहन भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। नंबर 2 वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फसाइदन, फसाइदन का माना इससे ज्यादा, वस्सुलुसु सुलुस मिलेगा, 1/3 मिलेगा, लिल इस्नैनि 2 के लिए, 2 माँ शरीक भाई हो या 2 माँ शरीक बहनें हो या 1 माँ शरीक भाई हो या एक माँ शरीक बहन हो, ये तीनों सूरतें इसमें आती है। 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो इनको सुलुस मिलता है। ये उसूल बता दिया, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन। इनके वो नोट के था जो मैंने उसूल बताया, इनके मुज़क्कर यानी ये भाई जो है माँ शरीक भाई है, व इनासुहुम और इनके मुअन्नस यानी माँ शरीक बहनें, फिल क़िस्मति तक़सीम में, वल इस्तिहक़ाक़ि और मुस्तहिक़ होने में दोनों बराबर है। किस्मत तकसीम में मतलब ये कि 1 माँ शरीक भाई है 1 माँ शरीक बहन है, अब दोनों को सुलुस मिला, अब वो दोनों में बराबर तकसीम किया जाएगा, ये किस्मत हो गया तकसीम। इस्तिहकाक से मुराद ये कि सुदुस जो है, अगर 1 माँ शरीक भाई है तब उसको सुदुस मिलता है, 1 माँ शरीक बहन है तब भी वो सुदुस मिलता है। ये नहीं कि माँ शरीक भाई को ज्यादा मिल जाए, माँ शरीक बहन को कम मिल जाए। ठीक है। नंबर 3 वयस्कुतूना, वयस्कुतूना का माना होते हैं और ये गिर जाते हैं, साकित हो जाते हैं, महरूम हो जाते हैं, यानी इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। किन के साथ, बिल वलदी, मैयत की औलाद के जरिए से। मैयत की औलाद मौजूद है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। ववलदिल इब्नी, ववलदुल इब्न पोता पोती में से है तब भी नहीं मिलता। वइन सफल, उससे नीचे भी चलते जाए, यानी मैयत की औलाद पढ़ पोता पढ़ पोती है तब भी नहीं मिलेगा। इसी तरह वबिल अबी, बाप के जरिए से,
वल जद बिल इत्तिफाक व बिल अबी वल जद बिल इत्तिफाक, और जद के जरिए से, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, बिल इत्तिफाक का इस तरफ इशारा कर दिया कि किसी का इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह औलादुल उम के अहवाल, औलादुल उम के अहवाल हो गए। ये भी आसान थे, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब शोहर की तरफ आते हैं। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं। शोहर और बीवी का हिस्सा जो है बहुत ही कम है, 2 हिस्से हैं उनके। यानी एक शख्स का नहीं, यहाँ पे खातून है, खातून का इंतकाल हो गया, उसका शोहर मौजूद है, तो अब उसको विरासत में हिस्सा कितना मिलेगा? तो 2 अहवाल है, शोहर के 2 अहवाल हैं। एक खातून का इंतकाल हुआ और खातून की औलाद नहीं, बीवी की औलाद नहीं है, तो शोहर को आधा हिस्सा मिलता है। शोहर को कितना मिलता है? आधा हिस्सा मिलता है। औलाद मौजूद है, चौथा हिस्सा मिलता है। औलाद मौजूद है, क्या मिलता है? चौथा हिस्सा मिलता है। अच्छा, यहाँ पे बीवी की औलाद, ये मैंने लफ्ज क्या लिखा है? बीवी की औलाद ना हो। शोहर की औलाद मैंने नहीं बोल लिखा, बीवी की औलाद ना हो। बीवी की औलाद नंबर 2 में देखिए, ख्वाह इसी शोहर से हो या दूसरे से हो। ठीक है, चाहे इसी शोहर से बीवी की औलाद हो या दूसरे शोहर से, पहले कहीं पे उसने निकाह किया हुआ था, उससे बच्चे उसके मौजूद थे, फिर इस शख्स से निकाह कर लिया, अब इस शख्स से इसकी कोई औलाद नहीं है, साबिका शोहर से उसकी औलाद मौजूद थी, फिर उस खातून का इंतकाल हो गया। अब चूंकि ये बीवी की औलाद है, तो ऐसी सूरत में शोहर को चौथा हिस्सा मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि इसी शोहर से औलाद हो, दूसरी शोहर से औलाद हो, दूसरे शोहर से, तो वो भी काफी है। ठीक है, तो शोहर के 2 अहवाल हो गए। मैयत की, मरहुमा की औलाद ना हो, इनको आधा हिस्सा मिलता है। मरहुमा की औलाद हो, चाहे इसी शोहर से हो या दूसरे से हो, तो चौथा हिस्सा मिलता है। इसको क्या मिलता है? चौथा हिस्सा मिलता है। विरासत, मिसालों की तरफ आ जाए जी। मिसाल नंबर 1 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, एक खातून का इंतकाल हुआ, ये याद रखें खातून है यहाँ पे, खातून का इंतकाल हुआ, उसका शोहर मौजूद है, उसका शोहर मौजूद है और खातून का बाप मौजूद है। अब हमने पढ़ा कि मरहुमा की औलाद ना हो, बीवी की औलाद ना हो, शोहर को क्या मिलता है? निस्फ मिलता है, आधा हिस्सा मिलता है। ठीक है, और बाप के अहवाल भी हमने पढ़े थे कि मरहुमा की औलाद अगर ना हो तो बाप आसबा बनता है, तो हमने यहाँ पे बाप को आसबा बना दिया। अब ये निस्फ और आसबा कैसे मिलता है इनको, ये बाद में हम पढ़ेंगे। अब ये निस्फ कैसे देना है, आसबा कैसे देना है बाप को, ये बाद में हम पढ़ेंगे, इसका अलग तरीका है, तवसीलुल हुकूक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिसाल नंबर 2 की तरफ देखिए, एक खातून का इंतकाल हुआ, उसका शोहर मौजूद है और दादा मौजूद है, तो ऐसी सूरत में चूंकि मरहुमा की औलाद नहीं है, तो आधा हिस्सा मिलेगा। दादा के अहवाल हमने पढ़े थे कि अगर मरहुमा की औलाद ना हो तो दादा आसबा बनता है, ये भी हो गया। मिसाल नंबर 3, एक खातून का इंतकाल हुआ, उसका शोहर मौजूद है और बेटी मौजूद है, चाहे वो इसी शोहर की बेटी हो या साबका शोहर की बेटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। या तीसरी बात मैं करने लगा हूँ, ये सिराजी के हाशिए में भी लिखी है कि अगर वो जिना से भी हो तो उससे भी फिर ये जो शोहर है इसको चौथा हिस्सा मिलेगा, रुबा मिलेगा। ये जिना से बच्चा जब पैदा होता है तो वो जानिया की तरफ उसकी निस्बत की जाती है, उसका नसब जो है जानिया से साबित किया जाता है, जानी से नहीं, जानिया से साबित किया जाता है। तो बहरहाल एक खातून का इंतकाल हुआ, उसका शोहर मौजूद है, बेटी मौजूद है, ये शोहर को क्या मिलेगा? रुबा मिलेगा, 1/4। रुबा से मुराद यानी कुल माल के 4 हिस्से कर देंगे, उनमें से एक हिस्सा जो है शोहर को मिल जाएगा। मिसाल नंबर 4 की तरफ आ जाए, मिसाल नंबर 4 की तरफ, एक खातून का इंतकाल हुआ, उसका शोहर मौजूद है और उसकी पोती मौजूद है, तो ऐसी सूरत में शोहर को रुबा मिल जाएगा, चूंकि पोती जो है ये भी औलाद में शामिल है, ये भी क्या है? औलाद में शामिल है। तो ये शोहर के अहवाल हो गए। इसी तरह बीवी के भी अहवाल हैं, ये अरबी में ये याद कर लें, अरबी में कैसे इसको याद करना है। वलिज़्ज़ौजी हालतानी, वलिज़्ज़ौजी हालतानी, शोहर के 2 अहवाल हैं। शोहर के कितने अहवाल हैं? 2 अहवाल। अन्निस्फ़ु, शोहर को निस्फ़ मिलेगा, इंदा अदमिल वलदी, औलाद ना होने की सूरत में, व वलदिल इब्न, इसी तरह पोता पोती ना होने की सूरत में,
व इन सफल इस तरह नीचे चलते जाए, पड़ पोता पड़ पोती ना होने की सूरत में। नंबर 2 वर्रुबु इंदल वलदी, औलाद होने की सूरत में, वलदिल इब्न पोता पोते होने की सूरत में, व इन सफल उसी तरह नीचे चलते जाए, इनको रुबा मिलता है, शोहर को रुबा मिलता है। अब बीवियों का विरासत में हिस्सा कितना बनता है? अब यहाँ पे शोहर का इंतकाल हो चुका है, ठीक है, अब बीवी को विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा? यहाँ पे एक बात याद रखिए, बीवी एक हो या एक से ज्यादा हो, यहाँ पे ज़ौजात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी एक बीवी है, 2 है, 3 है, 4 है, तमाम सूरतों में यही 2 अहवाल है। क्या मिलेगा? रुबा मिल जाएगा। रुबा का माना चौथा हिस्सा, शोहर की औलाद ना हो। अच्छा, बीवी में फिर हमने देखना शोहर की औलाद, बीवी की औलाद नहीं देखेंगे, शोहर की औलाद, चाहे इसी बीवी से इसकी औलाद है या पहले की दूसरी कोई बीवी है उससे औलाद है, ठीक है, तो ये शोहर की औलाद हमने देखना है। तो शोहर की औलाद ना हो तो बीवी 1 हो, 2 हो या 4 हो, उन चारों को रुबा मिल जाएगा, चौथा हिस्सा मिल जाएगा, यानी चौथा हिस्सा उन चारों में, उन तीनों में, उन 2 में बराबर तकसीम होगा। नंबर 2, बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, 8वां सुमन 1/8, यानी शोहर की कोई औलाद हो, चाहे इसी बीवी से हो या दूसरी से, इसी बीवी से हो या दूसरी से, तो शोहर को क्या मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? 8वां हिस्सा। ये मशहूर है कि बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि अगर बीवी की, शोहर की औलाद हो तब 8वां हिस्सा मिलता है, औलाद ना हो तो चौथा हिस्सा मिलता है, ठीक है। अब नोट के तहत अहम बात देखिए, बीवी 1 हो या 1 से ज्यादा, रुबा और सुमन में सब बराबर की शरीक होंगी। ये नहीं कि हर बीवी को चौथा हिस्सा मिलेगा, हर बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, बल्कि चाहे रुबा हो या सुमन, उनमें बराबर तकसीम किया जाएगा। उनमें क्या हो किया जाएगा? बराबर तकसीम किया जाएगा। बस ये ख़त्म करने लगे हैं, ये बीवी के अहवाल पढ़ लिए, इसके बाद बेटी के पढ़ के ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो परेशान ना हो। मिसाल नंबर 1 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक बीवी मौजूद है, ज़ौजा मौजूद है, और उस शख्स का बाप मौजूद है, मरहूम का बाप भी मौजूद है। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर मैयत की औलाद ना हो तो बीवी को चौथा हिस्सा मिलता है, 1/4। बाप के अहवाल हम पढ़ चुके हैं, मैयत की औलाद ना हो, बाप क्या होता है? आसाबा बनता है। मिसाल नंबर 2 देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 2 बीवियां हैं और उसका बाप मौजूद है, तो 2 बीवियों को क्या मिलेगा? रुबा मिल जाएगा, यानी रुबा दोनों में बराबर तकसीम होगा और बाप आसाबा होगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। मिसाल नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी मौजूद है, उसकी क्या है? बीवी मौजूद है, और मैयत का की बेटी मौजूद है, बिन्त या इबन यानी पोता मौजूद है, चाहे पोता नहीं, बेटा, बेटा मौजूद है या बेटी मौजूद है, तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा, सुमन मिल जाएगा। मिसाल नंबर 4 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी 4 बीवियां हैं और उसकी बेटी मौजूद है या बेटा मौजूद है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसको 8वां हिस्सा मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? 8वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बीवियां हैं, तो एक बेटा या बेटी के बजाय 20 बेटे या बेटियां कर ली जाए ताकि इंसाफ हो जाए। बहरहाल ये बीवी के अहवाल जो है ये भी आपके सामने आ गए और मिसालें वगैरह भी ये समझा दी आपको। अब ये अरबी में इसके अहवाल जो है वो आपके सामने बयान करेंगे। वली ज़ौजाति हालतानी, ज़ौजात के लिए, ज़ौजा नहीं है, वली ज़ौजति नहीं, वली ज़ौजाति हालतानी, बीवियों के लिए 2 अहवाल हैं। नंबर 1 अर्रुबु लिल वाहिदति, रुबु मिल जाएगा वाहिदा के लिए, फसाइदतन या वाहिदा से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। कब? इंद अदमिल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल, बेटा बेटी के ना होने की सूरत में, पोता पोती ना होने की सूरत में, व इन सफल, पड़ पोता पड़ पोती के ना होने की सूरत में, औलाद ना होने की सूरत में। नंबर 2 अस्सुमुन इंदल वलदी व वलदिल इब्नि व इन सफल,
इनको 8वां हिस्सा मिलेगा। बेटा बेटी ना होने की सूरत में, पोता पोती ना होने की सूरत में, पड़ पोता पड़ पोती ना होने की सूरत में। ठीक है, ये ज़ौजात के अहवाल जो है वो भी आपके सामने आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिरी जो है बेटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम 4 मर्द पढ़ चुके हैं और एक उख्ते खैफिया जो है उसका भी पढ़ चुके हैं और ज़ौजा भी पढ़ चुके हैं, 6 हो गए। और ये बेटी जो है ये 7 हो जाएंगे, बाकी 5 बच जाएंगे। ये आखिरी है इंशाल्लाह। बेटी की 3 हालतें हैं, बस ये तकरीबन 3 मिनट या 5 मिनट लग जाएंगे इसमें, फिर आप क्लास लीव कर सकते हैं। बेटी की जो है 3 हालतें हैं। नंबर 1, बेटी को निस्फ मिल जाएगा, आधा हिस्सा मिल जाएगा। कब? जब बेटी एक हो। बेटी एक हो तो क्या मिलेगा? निस्फ मिल जाएगा, आधा मिलेगा। बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा, 2/3। 2/3, 2/3 से मुराद क्या है कि एक चीज के 3 हिस्से कर दें। एक चीज के क्या कर दिए? 3 हिस्से कर दिए, 1 2। अब ये जो 2 हिस्से हैं इनको 2/3 कहेंगे, 2 हिस्से। जब बेटियां 2 से ज्यादा हो, जब बेटियां क्या हो? 2 से ज्यादा हो तो इनको 2/3 मिलता है। ठीक है, और 2/3 उनमें बराबर तकसीम होगा। नंबर 3, आसबा। बेटी क्या होगी? आसबा होगी, बेटियां आसबा होंगी। कब? अगर बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी आसबा हो जाएगी। बेटी के साथ क्या हो? बेटा हो तो बेटी आसबा हो जाएगी। चाहे बेटी एक हो या एक से ज्यादा, बस एक बेटा आ जाए वो सब आसबा बन जाएंगी। असबा से क्या मुराद होगा? यहाँ पर बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। बेटों को 1 हिस्सा और बेटियों को 2 हिस्से दिए जाए। बेटे को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल जो है अप्लाई होगा। तो जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, वरासा में बेटी आ जाए, तो आपने आंखें बंद करके ये 3 अहवाल, अगर 1 है तो निस्फ दे देना है, 2 है या 2 से ज्यादा है तो 2/3 दे देना है। अगर बेटा आ जाए तो वो आसबा बना देंगे। ठीक है, मिसालों की तरफ आ जाएं। मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 1, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक बेटी मौजूद है और उसका बाप मौजूद है। बेटी मौजूद है और बाप मौजूद है। हमने पढ़ा था कि अगर बेटी एक हो तो निस्फ मिलता है, बेटी एक हो तो निस्फ मिलता है। अब मुझे जरा बाप के बारे में बताएं कि बाप को यहाँ पे क्या मिलेगा। जल्दी जल्दी आप लिख के बता दें कि बाप को क्या मिलेगा इस सूरत में। बाप को क्या मिल जाएगा, जरा मुझे लिख के बता दें जल्दी से, जल्दी बताएं। जी, बाप को सुदुस भी मिलेगा और आसबा भी होगा क्योंकि मुअन्नस औलाद मौजूद है। मिसाल नंबर 2 की तरफ आ जाए। 2 बेटियां, मैयत की 2 बेटियां हैं और दादा है, तो 2 बेटियों को क्या मिलेगा? सुलुसान मिल जाएगा और दादा जो है इसको सुदुस भी मिल जाएगा और आसबा भी होगा। ठीक है, मिसाल नंबर 3 की तरफ आ जाए। बेटी है और बेटा है, तो ये क्या हो जाएंगे? आसबा बन जाएंगे। बेटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। अब बेटी चाहे 1 हो या 3 हो या 5 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस बेटा आ जाए ना। बेटे इतने बदमाश होता है वो आसबा बना देता है। बेटा आ जाए, चाहे 10 बेटियां हो, 5 बेटियां हो, 7 बेटियां हो, तो बेटियां खुद ब खुद आसबा बन जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये अरबी में इसको हम बयान कर लेते हैं। वलिल बिन्त सलासतु अहवाल, बिन्त के लिए 3 अहवाल हैं। नंबर 1, अन्निस्फु लिल वाहिदा, यानी बेटी अगर 1 हो तो निस्फ मिल जाएगा। वस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, 2/3 मिल जाएंगी। लिल इस्नतैनि, जबकि बेटियां 2 हो, फसाइदतन या 2 से ज्यादा हो, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। नंबर 3, वमअल इब्न लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे के साथ लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल अप्लाई होगा। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का उसूल क्या है कि मुज़क्कर के लिए, यानी मुज़क्कर से मुराद यहाँ पे बेटा है, बेटे के लिए हज़्ज़िल उन्सयैन, उन्सयैन यानी 2 मुअन्नस, हज़ का माना होता है हिस्सा, 2 मुअन्नस 2 बेटियों के हिस्से के बराबर होगा।
यानी आसान अल्फाज में बेटे को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, जिसको हम आसाबा से ताबीर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहवाल हमने पढ़ लिए, समझ लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी समझ आ गए होंगे। अब आपने करना क्या है, इनको अजबर याद करना है। बाप के 3 अहवाल, दादा के 4 अहवाल, औलादुल उम के 3 अहवाल, जौज के 2 अहवाल, जौजा के 2 अहवाल और बेटी की जो है इनके 3 अहवाल। इनको जुबानी अजबर याद करना है। और आज जो है 24 घंटे आपके पास जो है चलते फिरते आपने दोहराने हैं, चलते फिरते आप दोहराएं, ठीक है। अब ये मिसालें वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, मिसालें याद करने की जरूरत नहीं है। या तो आप उर्दू में याद कर लें या अरबी में याद कर लें। मसलन बाप के 3 अहवाल है। सुदुस जब मुज़क्कर औलाद हो या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों औलाद हो, और सुदुस आसबा जब मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद मौजूद हो, सिर्फ आसबा जब औलाद मौजूद ना हो। बस ये याद करना है और समझ तो आपको आ गया है, अजबर याद करना। इस तरह बाप दादा के अहवाल के बाप मौजूद हो तो दादा को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर बाप मौजूद ना हो और मैयत की सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तो सुदुस मिलेगा। और अगर मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो सुदुस भी मिलेगा और आसबा भी बनेगा। और अगर मैयत की औलाद ना हो तो क्या बन जाएगा, आसबा बन जाएगा। बाप और दादा के अहवाल में, बाप और दादा के मसाइल में 4 मसाइल है, उनमें फ़र्क है, वो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। औलादुल उम के 3 अहवाल है। जब 1 हो तो सुदुस मिलता है, 1 से ज़्यादा हो तो सुलुसान मिलता है, सुलुस मिलता है। और अगर मैयत की औलाद हो, बाप हो या दादा हो तो ये महजूब हो जाते हैं। और यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि सुलुस में वो बराबर दोनों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जौज जो है, मैयत बीवी की औलाद मौजूद है तो निस्फ मिलता है, औलाद मौजूद ना हो तो निस्फ, अगर औलाद मौजूद हो तो रुबो मिलता है। जौजा के 2 अहवाल है, मैयत की औलाद नहीं है तो रुबो मिलता है, औलाद मौजूद है तो सुमन मिलता है। और बेटी की 3 अहवाल है, जब 1 हो निस्फ, 2 हो या 2 से ज़्यादा सुलुसान, बेटा हो तो आसबा। ये जो है इस तरह आपने याद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने अजबर याद करना है तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी भी होगी और समझ भी अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। अब जिन्होंने सवाल पूछना है, सबक ख़त्म हो चुका है। अब अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है वो सवाल पूछ सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और ये कि आज का सबक भी आपके साथ शेयर हो जाएगा और गूगल फॉर्म जो है मैं आज शेयर कर दूंगा, ठीक है, शाम के वक्त में। तो ये सबक आपने याद किया होगा उस वक्त, तो आपने सोच समझ के उसको फिल करना है, जो सवालात वगैरह होंगी तो उसको आपने सही तरीके से हल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इल्म नाफ़िअ हमें नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअ। और जो हमने पढ़ा या पढ़ाया है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसका सवाब हमारे जिन असातिज़ा का इंतकाल हो चुका है उनको पहुँचाए, और जो असातिज़ा हमारे मौजूद है उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।